Assalamu alaikum everyone, and today in this video we are going to discuss 3 ways that can help you improve your score on the reading section of digital SAT, right? Now if you talk about the reading section of the digital SAT, it is one of the hardest peaks to climb, right? It is one of the most difficult parts of the paper, right? And yet again, it is very important because it is 56 or maybe more than 56% of the entire reading and writing section, right? Now, how can we actually, improve the score on the reading section? This is a question posed by almost everyone that is going for the digital SAT, right? Now, there are many things that you can do, right? I have tried to, sort it down and summarize it into 3 things that, you can use, and hopefully, if you go for it, you will hopefully improve your score by at least 100 to 150 points in the reading section if you follow it properly, right? Now, the first thing is understanding the approach of the question, right? Now, it is very important for you to understand what the question is actually asking, right? There are many students who understand what is there on the passage, they understand what the passage is talking about, but they do not understand what the question is asking, right? So even if you have all the information, if you are not particular with what the question is asking, you will be doing your answer, you won't be getting the right answer. मिसाल के तौर पे सवाल आपसे पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया, आपने कोई एक पर्टिकुलर डिटेल उठा के उसके थ्रू अपना आंसर मार्क कर लिया जो ऑप्शन में मौजूद था, ठीक है, आपने पैसेज से ही वो इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन वो आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज यू फेल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, यू फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. वो सेंट्रल आइडिया पूछ रहा था, आपको पूरे पैसेज को कंसिडर करना था, वो आप नहीं कर पाए, आप समझ गए थे पैसेज लेकिन फिर भी आप आंसर गलत कर देंगे. So it is very important for every student to understand the approach of the question, right? That is the first thing. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आपके लिए ये जरूरी है समझना कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है, आप उसको समझे भी और आप उसको रिटेन भी करें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नो व्हाट यू आर रीडिंग, राइट? अक्सर बच्चे पैसेज में या तो वो पढ़ नहीं पा रहे होते उसकी डेंसिटी की वजह से, दे डोंट हैव अ गुड रीडिंग हैबिट, दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, राइट? और दे फेल टू रिटेन व्हाट द पैसेज इज सेइंग. They move on, as they read on, they start forgetting what they read before, right? So that is one of the problems, right? So for both of these problems, the solution is that you practice and practice. You make a reading habit, right? It's not because we can't do it, it's because we are not in practice. We are maybe into videos or something else. We are not into reading practice. That is why we fail to do that, right? So know what you read. You have to infer, you have to read, you have to take the meaning into account. If you don't understand what the passage is talking about, right, even if you know the approach, you will fail to solve that question, right? So it's very important for that. You have to read on a daily basis, or maybe on a bi-weekly basis or whatever. It's always recommended that you read on a daily basis. कुछ ना कुछ पढ़ें, अच्छी डिफिकल्टी का पढ़ें, जो सैट लेवल पे डिफिकल्टी है उस हिसाब से पढ़ें, ताकि जब पैसेज में आपके पास कोई ऐसी चीज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, आप उसको समझ सकें और आप उसके अंदर अपना फोकस ना खो पाएं. ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस रीडिंग फॉर इट, राइट? लास्टली जो तीसरी बात है वो ये है दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट टाइमिंग इज एवरीथिंग. देखिए, डिजिटल एसएटी में यू हैव अ लिटिल मोर देन अ मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ स्टूडेंट जिसकी अप्रोच भी बहुत अच्छी है, जिसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है, वो क्वेश्चन को समझता भी बहुत अच्छी तरीके से है, वो रीडिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन he fails to solve the question within the time frame that is given on the SAT, right? तो अब सब कुछ आने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा क्योंकि जो टाइम पीरियड है क्रैक करना था सैट को जिस टाइम पीरियड के अंदर, वो उसको नहीं समझ पाया, राइट? तो अब क्या करना है, इसके लिए क्या करना है? अप्रोच समझ आ गई, रीडिंग अच्छी कर ली, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सवाल भी समझ आ जाता है. अब टाइम फ्रेम में लाने के लिए ये जरूरी है कि जो टेस्ट की टाइमिंग है उसके अंदर पूरे टेस्ट सॉल्व किए जाएं. जब आप एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जब आप 2 टेस्ट सॉल्व करेंगे, जब आप 3 टेस्ट सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे उसको स्ट्रेच करने की, अपने आप को स्ट्रेच करने की, अपनी रीडिंग स्पीड को स्ट्रेच करने की, क्वेश्चंस को पढ़ने की, हर चीज में थोड़ा सा आप जब जल्दी करेंगे तो हो सकता है पहले टेस्ट में मुश्किल हो सकता है दूसरे टेस्ट में मुश्किल हो, लेकिन विद टाइम तीसरे चौथे टेस्ट में वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा. ठीक है? एक और टिप मैं आपको दूं, रिलेटिवली स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज को सॉल्व करना आसान है. ठीक है? रिलेटिवली उन क्वेश्चंस पे अगर मेहनत की जाए तो वो 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स में सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट? सो द मोर टाइम यू सॉल्व ऑन सेव ऑन दोज सेक्शंस, राइट,
the more time you will have extra for the reading sections, right? So work on the standard English convention and expression of ideas part as well. Work hard on them, try to get a perfect score on them, try to solve them early. अगर आप हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड बचा रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन हैं तो आप 10 मिनट बचा लेंगे और वो 10 मिनट को आप इजीली अपने रीडिंग सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आप अप्रोच समझ लेते हैं, अगर आपकी रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और अगर आप अप्रोच को समझ के रीडिंग टाइम जो सैट का है उसके अंदर कर लेते हैं, तो होपफुली अगर आप अभी जो भी स्कोर कर रहे हैं XYZ, उसमें आप ये देखेंगे अगर आप इन 3 चीज़ों को अप्लाई कर दें और इन चीज़ों को लेके आ जाएं तो आप देखेंगे आप 100 to 150 पॉइंट्स होपफुली बढ़ा लेंगे। Thank you so much. I hope this video helped you. If there is any question, you can leave it in the comment section. Please do subscribe our channel. Thank you so much.